What we did in the last lecture. Can you tell me what exactly we have completed in the last lecture? Yes, Sharad. Can you tell me what exactly we have completed? Okay, we have to start capacitors. Thank you, Joseph. So it's capacitance of a charge condenser or capacitor. It's one and the same. Condenser capacitor is one and the same we consider. We have to find out its capacitance tools. Now, what exactly the use? Can anybody tell me what is the use of this particular capacitor? What is the use of this particular capacitor? Yes, anybody? What is the use of this particular capacitor? Anyone? Uses to store electric energy. Very good, Sahil. It is used to store electrical energy. Yes, it is used to store electric charge also. To develop capacitor. Very good. Yeah, baat hai, Sahil. Okay, you're a CS student. That's why you know it much more better. Okay, a capacitor is used to store electric charge. Is that clear? So it is also used in order to store electrostatic energy we consider. Okay, तो ये कैपेसिटर का यूज क्या है? स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज. हम उसको स्टोर कर सकते हैं और उसका कैपेसिटेंस बढ़ा भी सकते हैं करके.
लेकिन ये चार्ज क्यों स्टोर करना पड़ता है? बिकॉज सी सम डिवाइसेस होते हैं जो वी यूज इट इन डे टू डे लाइफ, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, वहां पे अगर मैं कैपेसिटर कनेक्ट नहीं करूं एंड डायरेक्टली मैं चार्ज को फ्लो कराता हूँ, लिसन स्टूडेंट्स केयरफुली, if I make the charge to flow directly into my circuit of an appliance, what's going to happen? My circuit of the appliance will certainly be damaged due to heavy current or heavy charge. Due to heavy current or heavy charge, it will certainly get damaged students. Electrical damage हो सकता है. Maybe the coil inside can burn out in that case. तो ये ग्रेजुअली चार्ज को अब्सॉर्ब करता है, स्टोर करता है और जब भी चाहता है तभी रिलीज भी करता है. तो a capacitor is used to store electric charge and gradually it gets discharged also. Now, types of capacitor अगर देखोगे तो you have a parallel plate capacitor. इसको हम बोलते हैं parallel plate capacitor. Other than that, you have cylindrical shaped capacitors also in form of a cylinder. You have a spherical shaped capacitor also. So there are different types of capacitor. You have a spherical shaped, cylindrical shaped we consider, parallel plate capacitor we consider. Abhi, a type of a cylindrical shaped capacitor, शायद I don't know about it. How many of you have noticed it? अगर अगर शायद तुम अगर नोटिस करते हो तो तुम्हारे घर के पंखे जो होते हैं, सीलिंग फैन, तो सीलिंग फैन में सारों में ये कैपेसिटर लगाया हुआ होता है, सिलेंड्रिकल. एंड आई डोंट नो अबाउट इट, इफ यू हैपन टू सी इट वेरी प्रॉपर्ली, चिराग इज सेइंग इट, यस. तो तुम्हारा जो सीलिंग फैन का जो सरफेस है, अगर इफ यू हैपन टू वॉच इट राइट नाउ आल्सो, तो ऊपर देयर इज अ टॉप ऑफ इट देयर इज अ कैप. अगर शायद तुम्हारा वो कैप है नहीं या कैप थोड़ा सा ऊपर भी होगा तो तुम्हें अंदर का थोड़ा सा सर्किट दिखेगा. एंड इफ यू सी इन दैट पर्टिकुलर सर्किट, इफ यू सी अ सर्टेन एल्यूमिनियम सिलेंडर, एक छोटा सा सिलेंडर होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम सिलेंडर अंदर होगा, दैट इज अ कैपेसिटर. यानी पंखे की, सीलिंग फैन की पूरी जान उस कैपेसिटर के अंदर. अगर पंखा सपोज नहीं चल रहा है तो कैपेसिटर इज गॉट डैमेज्ड. अभी अभी व्हाट एग्जैक्टली दिस कैपेसिटर डज? Because see, when you look at the ceiling fan, students, it is such a heavy device. यानी अगर तुम उसका सेंट्रल पोर्शन देखोगे और उसको स्क्रू से खोलोगे ना, उसका सेंट्रल पोर्शन राउंड वन, तो देयर इज अ मोटर इनसाइड, a huge motor. It's a heavy motor. It's a few kilograms. और वो भी सस्पेंडेड वर्टिकली अंडर टेंशन, वी कंसिडर ग्रेविटी के हिसाब से. अभी कोई चीज सपोज कोई हैवी चीज है, कोई हैवी चीज है, उसको घुमाना है, उसको रोटेट करवाना है, यानी उसके इनर्शिया को ओवरकम करना है, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल इनर्शिया. तो अगर मुझे इसको रोटेट करके उसको घुमाना है तो आई हैव टू गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क. I have to give a large amount of external torque to that particular ceiling fan. So if I have to give a large amount of external torque students so that the fan will start rotating, for that what should I do? For that what should I do? So I need to apply a heavy current because the entire fan is initially at rest. जो पूरा फैन था, सीलिंग फैन था, वो entirely रेस्ट पे, उसको मोशन में लाना है. तो जैसे तुम स्विच ऑन करते हो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इन दैट केस? A heavy current starts entering into the motor. Now suppose if a heavy current starts, because it's in a state of rest, if you don't have a capacitor, you haven't connected a capacitor, and directly the heavy charge enters into the motor, what happens in that case? The motor can get damaged due to heavy current. It can get damaged due to heavy current in that case. यानी because of heavy current वो damage हो सकता है. और अगर वो damage हो जाता है in that case, then it's simply a heavy cost. तो क्या करता है, जो कैपेसिटर होता है, जैसे वो करंट को तुम शुरू करते हो, वो चार्ज को अब्सॉर्ब करता है और फिर एक 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 रेगुलेटेड फ्लो में वो फ्लो कराता है मोटर के अंदर. सो दैट मोटर गेट्स एन इनिशियल टॉर्क एंड द सिस्टम सेट्स इनटू रोटेशन. So this is what the function of a capacitor. It stores charge and it gets discharged also quite often in that case. Okay, these are cylindrical. वैसे ही ये capacitors are used in air conditions also. If you happen to see your window ACs or something of that sort,
तो वहां पे एक बॉटल होती है, पर दैट इज अ बिगर वन। कंप्रेसर को ऑन ऑफ करता है करके, तो उसके लिए भी हेवी चार्ज होता है, तो वहां पे भी कैपेसिटर होता है। The main function of a capacitor is to store electric charge. It can store energy. It can store energy. That is electrical energy or electrostatic energy. It can store because the charges are at rest. यहाँ पे charges motion में नहीं होते students. Charges are at rest. और वो store कर सकता है in form of energy we consider. And the formula for storing a charge in a capacitor students, okay? Energy, electrostatic energy stored in a capacitor is potential energy, and that is Q squared by 2C. This answer will be in Joule. देखो फॉर्मूला में मैंने क्या लिखा, Q squared by 2C. C is what? So C is the symbol for capacitance. एक capacitance ये एक जैसे phenomena होता है ना, resistance. Capacitance एक phenomena है to store charge. जैसे resistance is a phenomena for opposition. Capacitor is the name of a device. जैसे resistor होता है ना, वैसे capacitor. You getting it? The other word of capacitor can be considered as a condenser also. You can give a name to it as a condenser also. Symbolically, इसको ऐसे represent करता है. If somebody asks you to symbolically represent, you can represent in this manner. You can connect it one end to the positive, the other end you can connect to negative terminal also symbolically. Now, if I ask you students, अगर symbolically you consider, तो ये दो parallel plate हुए students, यानी दो metallic plate हुए, are getting it? And they are electrically charged we consider. If I happen to ask you what exactly a symbol we consider, the symbol for capacitance is C. What's the unit of this capacitance we consider? It's farad. F. Capital F, farad. जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे ना कैपेसिटेंस के बारे में स्टूडेंट्स, तो हम फैरेड के बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे the charge which gets stored and gets discharged, it's very small. So जब भी हमारा concept होगा related to it, it will be always very small amount of capacitance we consider. That means when you go for the conversion, तो conversion तुम्हारा बहुत ही छोटा होगा, जैसे microfarad, millifarad, picofarad, nanofarad. Nanofarad. Can you tell me what is 1 microfarad, students? What is 1 microfarad? 10 raised to -6 farad. Very good. 10 raised to -6 farad. 1 millifarad. 10 raised to -9. Very good. 10 raised to -3. Native is also answering. Good. Okay. One. आज क्या हो क्या गया है? आज फ्राइडे है ना. हाँ, चाय वगैरह पी के बैठे हो तुम लोग सारे. Good. Coffee. Coffee, sir. कॉफी पीते हो? अरे Yes, Yes. ज्यादा कॉफी अच्छी नहीं है. Most of coffee addicted है. Coffee addict. It's not too good enough. Okay. मजे ही कुछ और है. Okay. Okay. Himanshu, तू बता अभी what is 1 picofarad and 1 nanofarad? हाँ. पिकोफैरेड क्या है, नैनोफैरेड क्या है? कॉफी पी नहीं तूने? आंसर दे अभी. मैं चाय भी नहीं. Okay. Come on, Native, and the other one. So 1 picofarad Picofarad 10 10 to -12 farads and 1 nanofarad 10 raised to -9. Very, और picos are 10 raised to -12. very good. The girls are really doing it better in this particular class of things. Okay, students, so अभी ये conversion में लिख नहीं रहा हूँ. I'm getting it. All of you should know it. So I'll just repeat it. 1 microfarad, students, is 10 raised to -6 farad. 1 millifarad is 10 raised to -3 farad. 1 picofarad is 10 raised to -12 farad, and 1 nanofarad is 10 raised to -9 farad, -9. So this is what a student should keep in mind. Is that clear? So whenever you are trying to work out with the chapter, students, see to it that you try to work out with the units also properly.
अभी ये जो कैपेसिटर है उसका प्रिंसिपल क्या है? What is actually the principle of a capacitor? We'll understand that part first to understand how exactly it works. तो अगर किसी ने पूछा प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, क्या किसी को पता है? What is the principle of a capacitor, students? किसी को मालूम है प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर क्या है? Anyone? Yes, students. Anyone? Okay, now the answer is winner, please. ये कंसेप्ट है ना, मैं शायद पहले जब शुरू किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तभी मैंने बता दिया था. I told you earlier. Now the answer is winner, students. Suppose तुमने एक मेटालिक कंडक्टर लिया है, ओके, एक प्लेट लिया है जिसको तुमने इलेक्ट्रिकली चार्ज करके रखा हुआ है. I getting it? And the charge induced, and the charge yes, Siddharth Patel, are you there? Welcome, Siddharth Patel, are you there? He's not able to hear me. Students come without mic, I don't understand. Okay, so the answer is winner now. मैंने क्या किया, एक metallic plate लिया है students, and I have electrically charged, and the charge induced in the metallic plate is positive. Okay, so अगर मैंने charge induced positive किया है, तो can I say this charge have been stored, and this charge have been stored due to what? Due to the potential difference. And शायद मैंने कुछ potential difference apply किया होगा, वो हिसाब से some charges stored. तो अगर किसी ने पूछा what exactly capacitance is, तो इसका mathematical relation कैसे आता है? तो जैसे जैसे ध्यान से सुनना स्टूडेंट, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ, so as I go on increasing the potential difference, as I go on increasing the potential difference, okay, consider these two plates, not of this one, consider these two plates. The time when I consider these particular plates, if I happen to consider, as I go on increasing the potential difference, students, what happens to the charge induced onto them? मुझे सर charge जो होगा onto them also will go on increasing. यानी अगर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ते रहेगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे चार्ज बढ़ता रहेगा. लेकिन अगर सपोज तुमने वोल्टेज को ज्यादा ही बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल इसको मैंने ज्यादा ही वोल्टेज बढ़ा दिया, तो होगा क्या, तो ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा. लेकिन जब ये एक्स्ट्रा चार्ज आता है, एक्स्ट्रा चार्ज आता है उसके ऊपर, तो होगा क्या, तो मेरे से जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो पहला वाला चार्ज इसको रहने नहीं देगा, इसको रिपेल करवा देगा. यानी देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आल्सो, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. यानी जो पहले वाला चार्ज है इसको रिपेल करवा देगा. क्यों, रीजन क्या है, तो मतलब क्योंकि ऑलरेडी ये रॉड पूरा इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुका है. अगर आपको ज्यादा चार्ज डिपॉजिट करोगे तो वो तो होल्ड नहीं करेगा, उसको रिपल्शन मिलेगा. यानी हर एक कैपेसिटर का एक 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 कैपेसिटी होता है टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, and that term is called capacitance of a charge capacitor. So what exactly is capacitance we consider? Capacitance of a charge condenser or a charge capacitor is what?
is the maximum capacity to which you have stored charge in a parallel plate capacitor. उसके beyond तुम नहीं store कर सकते. उसके बिना अगर तुमने करना चाहा तो चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा. फिर जैसे जैसे चार्ज डिस्चार्ज होता है दूसरा चार्ज उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू होता है. तो ये एक प्रोसेस होता है, डिस्चार्जिंग गेटिंग चार्ज, डिस्चार्जिंग गेटिंग चार्ज, एंड इट्स अ कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू. कि जो भी डिवाइस होते हैं हम घर में यूज करते हैं सारों में हम स्टेडी करंट यूज करते हैं. स्टूडेंट्स, स्टेडी करंट चाहिए हमें, फ्लक्चुएटिंग करंट नहीं चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल कोई भी डिवाइस में करंट अगर फ्लक्चुएटिंग होगा, व्हाट्स गोना हैपन, तुम्हारा डिवाइस खराब हो जाएगा. वी नीड टू कंसीडर steady current in that case. That's why we consider for what a capacitor is the best way to put it. तो यहाँ पे क्या है, the electric charge, answer is the electric charge stored in the charge capacitor is directly opposite to potential difference. When I remove the symbol of proportionality, I'm going to get a constant. What does this constant stand for? C. Potential difference is V. What does the C stands for? The C stands for capacitance of a charge capacitor. If I make C as a unit, तो क्या हो जाएगा? Q by V हो जाएगा. Agreed. What exactly Q is always considered to be in coulomb? What is this potential difference is always in volt? So what exactly the capacitance will be in farad? Now अगर मैंने पूछा students, what is 1 farad? Where exactly capacitance is said to be of 1 farad? The capacitance said to be of 1 farad when a charge of 1 coulomb deposits at a potential difference of 1 volt. When a charge, answer is when a charge of 1 coulomb deposits on a parallel plate capacitor, when a potential difference of 1 volt is applied, the capacitance of such a capacitor is 1 farad. So 1 farad is equal to what? So 1 farad is equal to 1 coulomb upon 1 volt. Upon 1 volt. फॉर्मूला हुआ, ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ Q is equal to C. यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे हो क्या है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो एक्स्ट्रा चार्ज ये कैपेसिटर होल्ड नहीं करेगा. Extra charge it won't be holding it. Agreed. So now what exactly I've done? I've taken to understand the principle what I'm going to do. I'm taking a particular charge conductor. ये positively charged है. यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है. अगर मैंने पूछा इसका कैपेसिटेंस क्या है स्टूडेंट्स, तो बोलेंगे सर इसका कैपेसिटेंस होगा C is equal to Q upon V. ये इसका कैपेसिटेंस, ये फर्स्ट. ये क्लियर हुआ सबको स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी हम क्या करते हैं, हम अनचार्ज मेटालिक कंडक्टर लेके आते हैं. आंसर सुना, अनचार्ज मेटालिक कंडक्टर. अगर सपोज मैंने कोई अनचार्ज मेटालिक कंडक्टर नजदीक किया, ये अनचार्ज है, इससे मैंने इसके ऊपर चार्ज नहीं पता, ये मेरा प्लेट 2 है, ये मैंने मेटालिक प्लेट को मैंने अनचार्ज इसके नजदीक लेके आया, तो होगा क्या? डिस्टेंस बहुत छोटा रखा हुआ, तो होगा क्या? कैन यू टेल मी व्हाट्स गोइंग टू हैपन? If I bring an uncharged metallic conductor closer to my first charged conductor whose capacitance is C is equal to Q by V, what is going to happen? Charge will induce on the second plate. On what charge? What charge? That's my question to you is what charge will we get induced? बताओ कौन सा charge induce हो जाएगा? Tell me. Gazafar, you said it correct. ये बताया तुम लोगों को पहले स्टूडेंट्स. अगर मैं ये देखो ना, ये मेटालिक अनचार्ज कंडक्टर है, जैसे तुमने इसके नजदीक, तो ये मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना चाहेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज एक फील्ड क्रिएट करेगा, और वो फील्ड है उसकी वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगे. तो ये जो सेकंड प्लेट है उसके अंदर की तरफ कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा.
जैसे ही नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ चला गया, आई गेटिंग इट, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन दिस केस, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ सबको? पहला क्या था, मेटालिक रॉड न्यूट्रल था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। जैसे जैसे रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना चाहते तो इलेक्ट्रॉन सुपरफिशियल हो गए, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे, ऑन द सर्फेस ओनली, तो स्टैटिक हो गए। तो इस साइड का जो पोर्शन होगा उसको नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तो इस तरफ कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? अरे हाँ या ना तो बोलो तो मैं आगे बढ़ू, कॉफी वगैरह पी के बैठे हो। Yes, sir. Yes, sir. आराम से यहाँ पे कॉफी वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि दिस इज समथिंग यार, मतलब बिंदास एकदम टेबल वेबल बैठ के एकदम पाँव वगैरह लंबे करके बैठे होंगे आराम से, है ना। कोई कोई तो गद्दे में ही बैठे बैठे सोते सोते ऐसा सामने स्क्रीन रखा होगा, है ना। दिस इज द वे स्टूडेंट्स आर डूइंग स्टडीज। ओके, कम बैक। तो मुझे बताओ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो ये चार्ज इंड्यूस हुआ। अभी मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, इससे इससे होगा क्या? मेरा क्वेश्चन तुम्हें ये है, क्या ये जो पहले वाला प्लेट है उसको जो कैपेसिटेंस सी था, अभी इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? जैसे मैंने नजदीक किया, तो क्या वो कैपेसिटेंस बढ़ेगा या कैपेसिटेंस कम होगा? जैसे मैंने इसको नजदीक लेके आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट चार्ज कंडेंसर, द चार्ज कैपेसिटी, द प्लेट ऑफ इट, उसका क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगा या कम होगा? यस नहीं? Increase. Pardon? Increase. How can you say it's increase? फिर आगे तो सुनेंगे कैसे इंक्रीज होगा, रीजन? Yes, Chirag, you also said it increase. रीजन क्या? तो तुरंत तुम्हें सोचना चाहिए, सर आपने सामने फॉर्मूला लिखा है ना, फॉर्मूला से क्लियरली पता चलता है ना। ओके फाइन, लेकिन चिराग चिराग देखना फॉर्मूला, देखना फॉर्मूला सब लोग देखो ना। सी वन थिंग, व्हेनेवर यू सी इज व्हाट एग्जैक्टली कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होता है तो वो उतना ही रहेगा। प्लीज ये ध्यान में रखना, कैपेसिटर के अंदर चार्ज आता है और डिस्चार्ज होता है, आता है डिस्चार्ज, बट द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन टू इट रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बियॉन्ड तो वो स्टोर कर ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पे क्या है सर, ये एक कांस्टेंट फैक्टर हो गया, यानी आपका कैपेसिटेंस अगर आप बोल रहे हो कि इंक्रीज हो रहा है तो किसके ऊपर डिपेंड होगा? सपोज अगर मैं बोलूं नाउ द न्यू कैपेसिटेंस इज C1, पहले C इज इक्वल टू Q भी था, ये केस 1। अभी मैंने लिखा C1 इज इक्वल टू Q बाई V1, तो अभी देखो केस 2 में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा? सर ये जो नेगेटिव चार्ज है ध्यान से देखना, यानी कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है? पोटेंशियल। अगर मेरा पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, यू ऑल सेड इट इंक्रीज, यानी माय V शुड डिक्रीज। क्या V डिक्रीज हो रहा है? हाँ सर हो रहा है ना, क्योंकि देखो पहले ही जो प्लेट था, ध्यान से सुनना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थे। अभी जैसे आपने मेटल प्लेट डाल दिया तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है सर, ये इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सारे नेगेटिव इसके साथ में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये सारे नेगेटिव इसके साथ में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, डिड द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द पॉजिटिव हैज इंक्रीज और डिक्रीज? हैज इंक्रीज और डिक्रीज? क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। लेकिन नंबर ऑफ चार्जेस कांस्टेंट होना चाहिए, तो होगा क्या? वो और चार्ज को खींचना शुरू करेगा, तो उसका कैपेसिटी बढ़ गया। तुमने उसका कैपेसिटी बढ़ा दिया, कैसे? बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल। लेकिन तुरंत स्टूडेंट वहां पे एक क्वेश्चन पूछेगा, सर चलो फाइन, आप बोल रहे हो सही है कि नेगेटिव इसको न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन सर ये पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको सपोर्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो सर इसकी वजह से तो इसका पोटेंशियल अभी भी मेंटेन रहना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि सर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है, ये डिस्टेंस छोटा है और यहाँ का डिस्टेंस बड़ा है। तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाती है।
तभी जाके इसका जो इन्फ्लुएंस इस पे होगा वो सर्टेनली होगा, लेकिन लेस, नॉट टू दैट एक्सटेंट मच। सो हुआ क्या अभी सेकंड केस में? तो सेकंड केस में आपने जो जो प्लेट था, ये पहले वाला, ये जो V1 था, उसका आपने पोटेंशियल कम कर दिया, उसका पोटेंशियल कम है तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो गया? बढ़ गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? अरे हाँ या ना तो बोलो। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, इतना बदल गया इंसान। Early morning, Gazafar is also saying it yes, Chirag has said it yes. What about the rest of the students? Rest of the students, क्या बात है यार, सुबह के टाइम पे तुम लोग सारे अटेंड करते हो कि क्या है? हाँ, कोई 11 बजे के 12 बजे के लेक्चर तो सारे खाना पीना खा के आमरस पूरी खा के सो जाते हैं क्या? See, Shaili is also saying it yes. पहले Shaili used to unmute herself and say, but now also Yes, she's sir. behaving like, now she's behaving like a Gazafar and Chirag. हिमांशु तो बंद ही हो गया बोलना, नहीं सर कॉफी बोल पीता हूँ बस, उतना कॉफी पीता हूँ उतना बोल दिया बस, उसके बाद में उसने आंसर देना ही बंद कर दिया। ओके, कम बैक स्टूडेंट्स। समझ रहा था। ओके, अभी अभी और एक क्वेश्चन में पूछना स्टूडेंट्स। ओके, ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। मुझे अभी ये कंसेप्ट हुआ कैपेसिटेंस बढ़ा, अभी मुझे और कैपेसिटेंस बढ़ाना है। चलो मैंने ये पहला वाला प्लेट, इसको और कैपेसिटेंस बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँ? एनीबॉडी? somebody, at least one body, yet nobody. भगवान गजफर, चिराग, आंसर फास्ट, बताओ। मुझे इसका कैपेसिटेंस और बढ़ाना है। Naydev, Shaili, see those people who are answering, I have to just reply to them. बाकी तो मेरे हिसाब से पूरा क्लास सो रहा है। पोटेंशियल जीरो क्या? पोटेंशियल जीरो का मतलब क्या हुआ? वैसा फिर तेरे को ये बोलना चाहिए ना, क्यों तुम्हारा इतना इंस्टेंट दिमाग नहीं चलता है? तुम्हें ये बोलना चाहिए सर सेकंड के लिए आपने बोला इसका कैपेसिटेंस बढ़ रहा है क्योंकि पोटेंशियल कम हो रहा है। एग्री? कैपेसिटेंस बढ़ रहा है क्योंकि पोटेंशियल कम हो रहा है, और पोटेंशियल कम क्यों हो रहा है? ये नेगेटिव चार्ज की वजह से। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज अभी भी उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है ना? तो सर ऐसा करते हैं ना, अगर उसको कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो सर ये पॉजिटिव चार्ज को खा लेते ना पूरा, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज को खा लेते हैं। यदि इसका पॉजिटिव चार्ज को खा ही ले लेंगे तो ये तो सपोर्ट करने लायक ही नहीं होगा, तो और पोटेंशियल इसका कम हो जाएगा, पोटेंशियल और कम हो जाएगा, पोटेंशियल और कम होगा तो कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा। अब इसको खाते कैसे? इसको खाते कैसे? सर ऐसा करते ना, इसको अर्थिंग कर दो, ये चलो डाल दो अर्थिंग, है ना? तो होगा क्या? यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर के अंदर जाएंगे, बाहर के अंदर जाएंगे, और धीरे धीरे ये पॉजिटिव चार्ज को खाना शुरू कर देंगे। तो फिर क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज सारे चले गए, सारे पॉजिटिव चार्ज विल गो अवे, सारे पॉजिटिव चार्ज विल गो अवे। Now when the positive charge goes away, students, now which charge is still existing? Only the negative. और वो तो इसको कर, so what happened to the potential? यानी in the case 3, what happens? C1 dash is equal to Q upon V1 dash. V1 dash still further decreases. Therefore, C dash will still further increase. अभी क्लियर हुआ? यानी स्टूडेंट्स, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? व्हेन एन earthed, see the way it is, when an earthed uncharged metal conductor is brought closer to a charged conductor, the potential of the charged conductor will decrease and its capacitance will increase. और वही तो तुम्हें चाहिए, वही तो तुम्हें चाहिए, उसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है तुम्हें। तो देखो इट्स वेरी सिंपल। तुमने क्या किया? पहले पहले एक ही, हाउ टू रिमेम्बर इट, तुमने पहले एक ही लिया, ये पॉजिटिव चार्ज था, तुमने क्या किया? एक अनचार्ज कंडक्टर लिया, इसको अर्थिंग में डाल दिया। When an earth uncharged conductor is brought closer to the charged conductor, what happened? What happened? Sir, you have increased its capacitance because its potential is decreasing.
और ये हुआ तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। यानी स्टूडेंट जितने भी तुम सर्किट डायग्राम देखोगे ना कैपेसिटर के, जब भी सर्किट डायग्राम के अंदर कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे तो वहां पे एक एंड पॉजिटिव होगा, जो एंड नेगेटिव होगा ना स्टूडेंट्स वो हमेशा अर्थिंग ही होगा। देख लो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के जितने भी डायग्राम्स होंगे तो यहाँ पे सारों को अर्थ किया हुआ रहेगा। विदाउट अर्थिंग इट्स नॉट पॉसिबल। So once again, I'll speak out the statement. Principle of a capacitor is when an earth uncharged conductor is brought closer to the charged conductor, what happens? The capacitance of the charged conductor will increase. What's the formula for charge capacitance and V? Q is equal to CV. So C is equal to Q by V. C is the symbol for capacitance. Q is the symbol for electric charge. V is the symbol for potential difference we consider. The unit of capacitance is always in farad. Generally, we take it in microfarad, millifarad, nanofarad, and picofarad we consider. What's the use of this capacitor is to store electric charge, thereby storing energy in the form of electrostatic potential energy, which is U, and it can be proved by Q square by 2C. What are the three types of capacitors we can consider? There are parallel plate capacitors, there are cylindrical shaped capacitors, there are spherical shaped capacitors. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ अभी? Yes, sir. Okay. और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर का स्टेटमेंट वापस बोलो ना. व्हेन एन earth's uncharged conductor is brought near a charged conductor, The capacitance of the charged conductor increases. क्या बात है नीरज? thank you, sir. Very good. Okay, students. Now we move further, students. Once when you learn about the capacitor, we got Q is equal to CV. I told you the principle of a capacitor. I've told you. Now, how do we get the relation for capacitance of a charge condenser? यानी ये जो capacitance है वो किसके ऊपर depend होता है? तो of course we consider voltage बढ़ेगा तो capacitance भी बढ़ सकता है, लेकिन एक हद तक बढ़ेगा, उसके beyond नहीं होगा। तो ये जो capacitance है students, ये एक actually property है, okay, in order to store charge. जैसे रेजिस्टेंस है वैसे कैपेसिटेंस है। अभी रेजिस्टेंस अगर मैंने पूछा व्हाट डज इट डिपेंड्स ऑन टू, कैसे रेजिस्टेंस बढ़ाओगे कैसे कम होगा, तो तुम तुरंत तुम्हारा दिमाग चलेगा सर हमने पढ़ा हुआ 10th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाय, सबको पता है R इज इक्वल टू रो एल बाय। तो रो क्या हो गया रेजिस्टिविटी, L क्या हुआ लेंथ, A क्या हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ये उसका ज्योमेट्री हो गया का वायर का रेजिस्टेंस के बारे में। तो वैसे अगर मैंने पूछा what exactly is the formula for capacity of a charge conductor based on to its geometry? So it's actually K epsilon 0 A by D. ये इसका फॉर्मूला होगा। So ये exactly ये कैपेसिटेंस है क्या, ये फिनोमेना है जैसे रेजिस्टेंस, जैसे तुम रेजिस्टेंस को लिखते हो तुम लोग ने 10th में पढ़ा होगा R is equal to रो L by रेजिस्टिविटी 11th में पढ़ा होगा रो L by A।
resistivity, length, area of cross section. तो वैसे it depends on to what? Sir, it depends on to the permittivity of a medium. ये K for a medium है. Sir, वो depend होगा surface area of the parallel plate capacitor, and it depends on the distance between the two capacitors. यानी ये जो capacitance depends on the surface area. Suppose अगर दो स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं कैपेसिटर के ऊपर, उसने एक जन ने एक प्लेट लिया जो 2 उंगली का थिकनेस दिखाता है और दूसरे पूरा हाथ जितना सा प्लेट लिया, तो कहाँ पे तुम्हारा चार्ज डिस्चार्ज ज्यादा होगा? सर जहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वो न्यूमरेटर में आने लगा। अगर मैंने 2 प्लेट को दूर रखा और फिर मैं उसको चार्ज इंड्यूस करने लगा तो इजीली नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने बहुत ही नजदीक रखा तो ऑफकोर्स फील्ड की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पीछे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, फिर उसको अर्थिंग दे दूंगा तो तुम्हारा कैपेसिटेंस बढ़ता रहेगा। लेकिन जितना तुम नजदीक या बढ़ाओगे, व्हाट हैपेंस इन दैट केस? as distance decreases, what's going to happen? Your capacitance will certainly will increase. So the formula, students, अगर किसी ने पूछा to find out capacitance of a charge plate capacitor, epsilon 0 a by d, ये किसके लिए है students? ये सिर्फ है for parallel plate capacitor. This is for a parallel plate capacitor. You getting it? We need to go for a parallel plate capacitor with consider. इसका derivation करते हैं. Now to get the derivation, what exactly? It's a very short derivation. अभी ये देखो, suppose मैंने 2 प्लेट ली है, I getting it? और ये दोनों प्लेट को मैंने एक इलेक्ट्रिकली चार्ज बना दिया by supplying potential difference across the. Okay, let us say that the charge induced over here kept it positive, और यहाँ पे मैंने चार्ज इंड्यूस होगा नेगेटिव. Now suppose if I take a point E somewhere, okay, closer to this positive charge. मुझे ये बताओ students, not E. Take on the variable. E. E क्यों नहीं लिया? पहले मैंने E लिया था, E को क्यों इरेज कर दिया? कि सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को E बताओगे यहाँ पे. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना? ये तुम्हारा प्लेट P1 होगा, ये तुम्हारा प्लेट P2 है, और एक कोई पॉइंट है. अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी, एनीबॉडी लिसन केयरफुली, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P close to the charge plate, close to a positively charged plate of any shaped conductor? Electric field intensity at a point P due to any shaped conductor close to positively charged plate. तो क्या बोलोगे? क्या फॉर्मूला होगा? Electric field intensity at a point just close to an electrically charged plate of any shaped conductor. I repeat, electric field intensity at a point very close to an electrically charged plate of any shaped conductor is, once again, electric field intensity at a point very close to an electrically charged plate of any shaped conductor. Most of the students must be hunting out of the textbook, आगे पीछे ऊपर नीचे. तो अगर हंट कर रहे हो तो स्टूडेंट्स थोड़ा पीछे जाओ. गॉसेस थ्योरम के अंदर हमने 3 एप्लीकेशन किए थे. पहला वाला स्फेरिकल कंडक्टर था, दूसरा वाला सिलेंडर था, तीसरा वाला इनफाइनाइटली शीट कंडक्टर था. उसका हमें दोनों तरफ की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 मिला था. लेकिन बाकी दो के अंदर मैंने प्रूव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point just outside an electrically charged conductor of any shaped conductor is always sigma upon k epsilon 0, or simply sigma upon epsilon for a medium. क्या ये मालूम था? क्या भूल गए हो? ये क्या है? क्या इन लोग अपनी फुर्सत से आते हैं? क्या है? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? कृष्णा परमार, वेरी गुड. कृष्णा परमार विदाउट माइक, सो वापस वेटिंग में डाल देता हूँ. जो भी बिना माइक, उनको सबको वेटिंग में डाल दो मैं वापस. बिना माइक वाले पता नहीं व्हाई डू दे एंटर इनसाइड.
दोनों को डाल दिया वेटिंग में अभी। स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट near a charged conductor of any shape. ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? Yes, sir. फाइन गुड। इसी वन थिंग ये ऑलरेडी हम पहले से जो भी तुम सीखोगे ना स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं कि कोई या तो नया होगा तो बताओगे, लेकिन पहले का मैटर हम उठा रहे हैं। I'm trying to pick up the matter from the previous part itself only. Is that clear? Yes. Even Nupur also, she is without mic. Why should I take her also? Why do they come without mic? I don't understand that. Students, mic का option नहीं है. That means they have switched off the mic or what? Huh? Can anybody explain me? If they haven't put the mic option over there, what exactly it reveals? So they are not connected to the voice. Why? There might be a technical issue or some they're No, sir, deliberately not doing it. when we log in, there's an option we have to connect or connect with the computer audio or the phone audio. That is because I've told them to switch on their mic connected, but they are not doing it. So क्या? That means they are not able to see me, or they are not, means they are able to see me, but they can't hear me. Is it so? Sir, they are only not connecting to the audio. It's nothing Acha. about internet. They are only not connecting. No. Are they able to hear me? No, sir. Acha. Of course, they will not be able to hear me. तो उसका मतलब क्या है? That means they're fooling the parents or what? सामने बैठे हुए. This is something ridiculous. That how could students do like that? How could students do like that? Okay, students. So electrical intensity at a point P closer to a charge conductor student sigma upon epsilon for a meter or sigma upon epsilon for a medium या कि epsilon for a medium. ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ. अभी हमें ये फॉर्मूला चाहिए. अभी मुझे बताओ anybody can I get this? ये फॉर्मूला से मुझे ये फॉर्मूला आ सकता है? चलो सिंपल अभी दो तीन फॉर्मूलाज का अरेंजमेंट करना है, अलाइनमेंट करना है, तुम्हें आंसर मिल जाएगा. यानी सिर्फ अकॉर्डिंग टू मी वो खेलना होता है. मींस यू ट्राई टू गो विद 2 or 3 formulas, try to clear out and try to get the answer for this. मैंने तुम्हें एक बड़ा सा ये फॉर्मूला तुम्हें दे दिया. दूसरा फॉर्मूला तुम्हें मालूम है Q is equal to C into V. ये तुम्हें मालूम है. चलो ये तो फॉर्मूला मालूम, और कुछ फॉर्मूला तुम्हें पहले से बता चुका हूं मैं. So now can you get the answer for this? Anyone want to get the answer? Please unmute yourself and answer. इसका कैमरा ऑफ है. हाँ हिमांशु, हिमांशु whose camera is off? सर वो पहले बंद था ना तो वही मैं बोला.
And Harsh Patel, why you are late? Why you are entering late? There's other girl also is coming so late. Why like that? Harsh Patel. Now Nupur is with white. Okay. So unmute करके बोलना. Yes, students, anybody can derive, please. Derive it fast. Yes, anybody getting the answer, students? Please fast. Come on, Gazafar, Chirag, Nadev, Shaili. Ivanshu, come on, answer fast. Nupur, can you answer Nupur? Okay, you want me to solve it, students? Solve कर दूं मैं? Hindu के solve करो. See one thing, I don't know why don't you think in the see one thing when I give you some time to think, maybe this जो मैंने लिखने के बाद में जो time मैंने लिया, I must have not taken more than 3 minutes. At least उतना तो तुम्हें सोचना चाहिए proof के अंदर स्टूडेंट्स. सब कुछ अगर टीचर बता देगा तो जब नो यूज ये ऐसी पढ़ाई नहीं होती स्टूडेंट्स. अभी देखो E is equal to sigma upon absolute 0, Q is equal to CV है. E को कैसे लिखोगे सर? Potential difference upon distance between the two plates, है ना? Yes, absolutely. Now they are posting answers. अभी जैसे मैं खड़ा हो गया तो ये आंसर्स पोस्ट करना शुरू हुए. तो पहले क्या हो गया था? Now she is answering. साहिली को है ना ऐसा इसमें से घुस के एक ऐसा पंच देना चाहिए मुझ पे. Okay, please pay attention students. यहाँ पे देखो E is equal to V by D, Q is equal to CV. तो V को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे V चाहिए. नहीं सर V नहीं चाहिए. यहाँ पे देखो फॉर्मूला तो ये चाहिए. तो कैन आई सब्स्टिट्यूट V? Therefore exactly V will be equal to Q by C. Agreed? I can consider in this case. So can I substitute V as Q by C? Yes. So now put it back over here. Sigma upon epsilon for a medium. V की जगह पे what am I going to Q by C into D. What is sigma? So sigma is charge per unit area of the plate. So that is Q by A I can consider in this case. Agreed? So sigma की जगह पे क्या रहना? Q by A into epsilon for a medium. It's going to Q upon C into D. Q and Q will get cancelled. आगे तुम्हें C. C is equal to what? Epsilon for a medium. A upon D आ गया. Can I run this as K for a medium? Epsilon 0 A by D also. Absolutely correct. ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया. गाइस स्टूडेंट्स मैंने किया क्या? मैंने E is equal to V by D लिखा, V को सब्स्टिट्यूट किया and sigma is charge per unit area, surface charge density. And I told you this sigma, lambda and rho. Sigma is charge per unit length. Sorry, lambda is charge per unit length, linear charge density.
सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, Q by A, and rho is चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सबसे पहले बता दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कूलम्ब मीटर क्यूब इनवर्स। अब ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, and that's a derivation। अगर तुमने देखा कि ये C किसके ऊपर डिपेंड है, C is directly proportional to what? K for a medium, and if K for a medium increases, what happens in this case? The capacitance also will increase। C is what? Directly proportional to surface area of the plate। तो अगर तुमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो उसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। C is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, यानी अगर ये दो प्लेट्स के बीच में मैंने डिस्टेंस और कम कर दिया, कैपेसिटेंस और बढ़ेगा। क्या ये क्लियर हुआ सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। ओके, सो अगर किसी ने पूछा ज्योमेट्री ऑफ अ प्लेट कैसा होना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी, कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए व्हाट शुड बी द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर्स। तो अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, तो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया एंड द डिस्टेंस एंड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल मीडियम। अभी अभी वैसे देखो, अभी ध्यान से देखो, अभी सपोज मैंने कैपेसिटर लिया, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, मैंने कैपेसिटर लिया, ओके, ये पॉजिटिव क्यू और ये माइनस क्यू, प्लीज एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, और ये पूरा एयर से भरा हुआ है, यानी कौन सा कैपेसिटर हुआ स्टूडेंट्स? सॉरी, इसको मैं ऐसा अर्थिंग बता देता हूँ, आपको अर्थिंग बताया नहीं। ये P1 is positive, P2 we consider as अर्थिंग, प्लीज स्टूडेंट्स। और देखो इसको मैंने, ये कौन सा कैपेसिटर है स्टूडेंट्स? ये फर्स्ट वाला, तो मेरे सर एयर कैपेसिटर है। तो स्टूडेंट्स ये बताओ मुझे, व्हाट एग्जैक्टली K फॉर एयर विल बी? सर K फॉर एयर इज इक्वल टू 1, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सर इसका फॉर्मूला होगा C फॉर एयर will be equal to what? Epsilon 0 A by D. Can I take the same thing for C for vacuum also? Yes, because we say K for air is nearly equal to K for vacuum. That is equal to 1. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Is this much clear with everybody? हाँ या ना बोलो? Yes, sir. और ये epsilon 0 है क्या? What is epsilon 0? That is permittivity of free space. Can anybody give me the value of epsilon 0? 8.85 into 10 raised to minus 12. Are you getting it? Newton inverse, meter square inverse, coulomb square. क्या ये मालूम है कि नहीं मालूम, कि भूल गए हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? Friends, is it clear? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी देखो सपोज अगर मैंने दूसरा वाला लिया, अभी वापस मैं प्लेट ले रहा हूँ, इसको अर्थिंग कर दिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अभी सपोज मैंने ये प्लेट के अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरा फिक्स कर दिया, ये है K फॉर मीडियम, तब इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो तुम्हारा फॉर्मूला ये आएगा, है ना? इसको लिखूंगा मैं C फॉर मीडियम। क्या लिखूंगा मैं? देखो ये C फॉर एयर है, C फॉर मीडियम, C फॉर एयर आएगा तो एप्सिलॉन 0 आएगा, C फॉर मीडियम आएगा तो K फॉर मीडियम। कैन आई गेट अ रिलेशन बिटवीन द टू? अरे हाँ सर, डिवाइड करो, देयरफॉर C फॉर मीडियम अपॉन C फॉर एयर और वैक्यूम क्या होगा? तो दोनों का रेशियो निकालो। अरे सर एप्सिलॉन नॉट A by D, एप्सिलॉन नॉट A by D तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? सीधा K फॉर मीडियम अपॉन 1 मिलेगा। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. एग्रीड। अभी तीसरा केस, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अभी तीसरा केस। तीसरे केस में मैंने एक कार्य प्लेट लिया है जो प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, और इसको मैंने अर्थिंग दे दिया। ये पूरा डिस्टेंस दोनों के बीच में D है स्टूडेंट्स, क्योंकि फॉर्मूला में D आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, अभी सपोज मैं अंदर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करता हूं, जिसका थिकनेस T है, जिसका थिकनेस T है थिकनेस। Now can you tell me what exactly the capacitance of such a charge condenser will? इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ?
Anybody? Anyone, students? दो प्लेट दिया है, दोनों के बीच में डिस्टेंस टी है, मैंने बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जिसका थिकनेस टी है, कि उसका की फॉर मीडियम है। आई वांट टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ सच अ कंडेंसर। तो इसका फॉर्मूला कैसे दो करोगे? Come on, students, answer fast. अविनाश सर, आप हो? सर अनम्यूट करो ना। अविनाश सर, are you there? Because there are some students who are not switching on the mic in that case. Krishna Parmar and Soham Patade, यानी वो मुझे सुन भी नहीं सकते हैं। उनको टेक्स्ट भी किया लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं। एटलीस्ट टेक्स्ट तो कर सकते कि क्या प्रॉब्लम क्या उनका। Are you there? Avinash sir has also gone out. Fine. Yes, students. What's the answer, students? Yes, somebody has put the answer. Chirag has tried to put forward. Sigma upon 0 sigma upon. Very good. Okay. लेकिन ये क्या है? E0 minus EP. ये नहीं। हेलो, ऐसे तो नहीं। E के हिसाब से आइडिया ही नहीं है तुम्हारा। हेलो, तुम्हारा फॉर्मूला ई में, अच्छा वो एप्सिलॉन था ना, एप्सिलॉन जीरो भी कंसीडर। लेकिन students, अगर मैंने डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया तो अभी तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? कैन आई इरेज द स्टूडेंट्स? क्या मैं पूरा इरेज? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, ओके। sir. The question was this, students, I'm giving you a parallel plate capacity. Distance was P.
I placed another plate inside. K for a medium, comma T. I want to find out capacitance. So the answer is yes, students. Capacitance का formula क्या है? C is equal to K epsilon 0 A by D. ये formula है. Can I say C is equal to epsilon for a medium A by D? ये दो formulas हैं. I getting it? लेकिन अभी हम ये use करेंगे क्योंकि K दिया हुआ है. तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? तो तुम लिख सकते हो C is equal to what? So you can put epsilon A upon D by K. यानी इसी फॉर्मूला को मैं अरेंज ऐसे कर सकता हूँ. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके नाउ स्टूडेंट्स लेट मी गो फॉर दिस. यानी अगर तुम्हें कैपेसिटेंस चाहिए तो क्या करोगे? सिर्फ इसका कैपेसिटेंस होगा तो देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ये कैसे डी पूरा प्लेट का है, थिकनेस टी है. तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स इसमें से एयर कितना ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस और डाइलेक्ट कितना ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस. तो तुरंत तुम बोलोगे सर डाइलेक्ट्रिक ऑक्यूपाई कर रहा है थिकनेस टी, तो उसमें से एयर कितना ऑक्यूपाई कर रहा है डी माइनस टी. ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ कि ना? Yes, अगर sir. टी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो बाकी की जो खाली जगह है उसमें एयर होगा ना, तो डी माइनस टी होगा. अभी तक तो फॉर्मूला इजी हो गया. ओ यानी सर आप ये बोलना चाहते हो कि अगर ऐसा लिख दिया है तो एप्सिलॉन ए तो आ गया, डी बाई टी के की जगह पे आप लिखोगे डी माइनस टी एयर के लिए अपॉन के फॉर एयर. क्यों नहीं? प्लस इसका भी तो आएगा थिकनेस ऑफ द मीडियम अपॉन व्हाट के फॉर मीडियम. अरे हाँ सर ये तो फॉर्मूला वो हो गया. व्हाट इज के फॉर एयर स्टूडेंट्स? के फॉर एयर कितना होता है? 1 होता है. नाउ कैन आई से इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इफेक्टिव कैपेसिटेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीडियम विल बी एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के फॉर मीडियम. क्या ये क्लियर हुआ फॉर्मूला? अभी समझ में आया स्टूडेंट्स? कैसे आया है फॉर्मूला? Friends, is it clear? Yes, sir. Hey, hi, Yes, Ram. sir. Chirag is saying it yes. Gazafar, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Ali is very loud and clear. सर Okay, मैंने sir. बोला था आपको सुनाई नहीं दिया. I तो बोली नहीं होगी. You didn't say it only. Don't say like that. तो बोला था. You didn't say it. Okay, students. Now suppose if I happen to go for another type of, suppose अगर मैंने कुछ dielectric mediums दिए, for example, the answer is going to be okay. If in case if I happen to go for dielectric mediums, if I consider and if the arrangement of the capacitors are connected, अगर suppose मैंने ये भी note करना as a formula. Okay, अभी suppose इसके अंदर अगर मैंने दिया है capacitors filled with dielectric and n slabs are given to you. Okay, n slabs of dielectric in series दिया, मैंने n slabs series में दिया, तो उसका effective capacitance कैसे होगा? ध्यान से देखना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी ये ध्यान में रखना. एप्सिलॉन 0 ए अगर मैंने कुछ n स्लैब्स डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और वो सीरीज में रखा है, एक नहीं एक से ज्यादा रखा, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा? फिर जैसे इसका है T1 by K1 आएगा, पहला स्लैब होगा तो उसका क्या होगा? T1 by K1 आएगा प्लस T2 by K2 आ गया प्लस T3 by K3 आ जाएगा प्लस ब्ला 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 प्लस Tn by आई गेटिंग इट Kn. क्या ये क्लियर हुआ सबको? अभी देखो मैंने स्लैब ऐसा रखा है कि वहां पे एयर की जगह ही नहीं है. स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कोई कैपेसिटर लिया है, यहाँ पे मैंने एक डाल दिया स्लैब, ये दूसरा स्लैब डाल दिया, ये तीसरा स्लैब डाल दिया, ये चौथा स्लैब, मैंने एयर की जगह नहीं, इसलिए मैंने एयर का डाला ही नहीं है. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अरे हाँ यार नाम तो बोलो. देख तेरे संसार की हालत Yes, sir. क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान. तुम ऐसे थे क्या कभी 10th में? ऐसे तो ओबीडियंट है ना 10th स्टैंडर्ड में, जरा भी अपने टीचरों को परेशान नहीं कर रहा है, तुरंत पूछा तो आंसर दे. Now I feel like that I should tell Avinash sir, at least in my lectures,
I want parents to sit beside them. With sons, their dad should sit, and with daughters, their mom should sit. उनके 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 एक एक पेरेंट को सुबह की 7:30 से 9:30 तो शायद सारे उठ जाते हैं, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा भी बैठ ले तो उनको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं लेक्चर में। आई फील लाइक ये होना चाहिए, हर 1 महीने में ऐसे एक एक सेशन सबका होना चाहिए, तो तुम सारे रिदम में आ जाओगे। क्योंकि ऑनलाइन ही चल रहे हैं, आगे पता नहीं भी कैसे कभी खुलेगा क्या खुलेगा कुछ पता नहीं। तो आई फील लाइक अगर पेरेंट को हम लोग साथ में इन्वॉल्व करें तो उनको पता चलेगा कि हाँ, देन दे कैन मॉनिटर, दे कैन लिटरली टेल यू हाउ टू डू इट। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है स्टूडेंट्स, है ना? अच्छा आइडिया है, हाँ कि ना? सब लोग ना बोले। हाँ हाँ हिमांशु, हाँ या ना? हाँ अच्छा है। हाँ वेरी गुड, इट्स गुड, होना चाहिए। अभी देखो ये n slabs ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन सीरीज, अगर मैंने वैसे n slabs मैंने अगर पैरेलल में दे दिया, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हिमांशु का आवाज बहुत क्लियर है। तो अगर अगर मैंने सपोज n slabs मैंने पैरेलल में दे दिया तो क्या फॉर्मूला आएगा? अगर मैंने पैरेलल में दे दिया, ओके, सेकंड वन, इफ n slabs ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट a, एग्रीड? ये तो तुम्हारा बाहर ही आएगा, लेकिन अंदर क्या आएगा मालूम है? ध्यान से देखना, देखो पूरा डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, d आ जाएगा उसके अंदर, एंड उसके अंदर क्या होगा, k1 प्लस k2 प्लस kn अपॉन व्हाट, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, यानी जितने तुमने स्लैब डाल दिए उतना तुम्हारा ये n आ जाएगा। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए? पैरेलल। और ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा सीरीज के लिए। इसके ऊपर एक एक प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे तुम्हारा एरिया क्या मालूम है? अगर तो तुमने पूछा ना एरिया, एरिया मैंने क्या किया मालूम है? हर एक का एरिया अगर मैं अलग भी लूँ या डिफरेंट भी लूँ, लेकिन एरिया सेम है स्टूडेंट्स। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3। तो मैंने क्या किया मालूम है? टोटल एरिया मैंने A बाय N ही ले लिया, इसलिए नीचे A बाय N आया। A बाय N इसलिए आया, D तो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है, एंड K1 प्लस K2 प्लस Kn भी कंसीडर। ये किसके लिए हुआ स्टूडेंट्स? ये हुआ फॉर इन slabs of dielectric connected in parallel. This is in slabs of dielectric connected in series. Please ध्यान से सुनना, ये किसके लिए है? सॉरी, अगर मैंने ये डाल दिया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई D, ये किसके लिए है? अगर सिर्फ एयर भरा हुआ है तो। एग्री? C इज इक्वल टू K फॉर अ मीडियम एप्सिलॉन 0 A बाई D, ये किसके लिए है? अगर मैंने पूरा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भरा हुआ है तो। एग्री? ये किसके लिए है? D माइनस अपन K प्लस है, डाइलेक्ट्रिक है और कुछ एयर भरा हुआ है। यानी स्टूडेंट्स अभी सोचो, जब भी तुम 12th की बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो तो कितने फॉर्मूला ध्यान में रखना है? तो सर सबसे पहले तो C इज एप्सिलॉन 0 A बाई D, अगर सिर्फ एयर से भरा हुआ है, अगर कोई मीडियम है पूरा पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है, पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है, तो एप्सिलॉन 0 K फॉर मीडियम A बाई D हो जाएगा, यानी C फॉर मीडियम हो जाएगा। लेकिन अगर वही एक प्लेट डाला हुआ है, आई गेट इट, एंड इट हैज अ थिकनेस T, तो उसके लिए फॉर्मूला ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T K फॉर एयर, एंड K फॉर एयर इज 1, क्योंकि ये 1 आ जाएगा तो अपॉन 1 ही है। Then if I say n slabs of in series, then this becomes a formula, n slabs in parallel. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Is it clear? Yes, sir. All right sir नहीं, हिमांशु all right yes sir नहीं, समझ में आया कि नहीं? तू तो बोल रहा ऑल राइट जैसे कि अच्छा आपने सही काम किया। ओके, कैन आई इरेज नाउ स्टूडेंट्स? क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. So loud and clear is native forest.
Okay, students. Now we go for parallel plate and connected in series, connected in parallel we consider. Okay, series and parallel we consider. Before going for it, students, I wanted to solve few problems. Okay, let's see who can get the answer for this. Okay, please try to understand this. Okay, अब ये question ये है students, problem है students now. A parallel plate capacitor मैंने दिया हुआ है जिसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. याद है सुना, parallel plate capacitor दिया है जिसका एरिया दिया है मैंने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. And they are separated at 2 millimeter students. Question पूछा है, first calculate its capacitance. पूछा गया है. Second question पूछा है, answer सुना, what is its capacitance if the space is filled between the plates completely with a dielectric having a dielectric constant of 6.7. So find capacitance when space is filled completely by dielectric of A, which is equal to 6.7. ये पहला क्वेश्चन है. ओके, दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना स्टूडेंट्स. ओके, साथ में और दोनों का आंसर प्रॉपर लेके आना स्टूडेंट्स. इन अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस, यानी मैंने वापस एक कैपेसिटर दिया. ओके, अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस इज गिवन टू यू एज 20 माइक्रोफैरड. ये दिया है म्यू एफ. द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 2 मिलीमीटर. डिस्टेंस दिया है 2 मिलीमीटर. एग्रीड. If a dielectric slab of width 1 millimeter, एक dielectric slab दिया है जिसका width 1 millimeter दिया है and dielectric constant दिया है for that particular medium, okay, 2 is inserted between plates. Okay, find new capacitance. Hope the question is clear to all of your students. कैपेसिटेंस दिया जिसका 20 माइक्रोफैरड है, डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है. मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिया जिसका विड्थ 1 मिलीमीटर है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है. तो फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस. क्या ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, क्या ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? ओके, चिराग has answered. चिराग responds. Razafar has stopped responding. Razafar है ही नहीं, things like that. Lecture में है ही नहीं, things like that. No, he's there inside the lecture, but he's not responding. Come on, solve students. Get me the answer. And one who gets the answer, please post the answer because I'm going to tell you to unmute and answer, please.
Yes, anybody? Chirag has posted his answer. He's got the first answer. The first answer is absolutely correct. Very good, Chirag. Second वाला भी बताओ. Second वाला first answer ही दिया तुमने. Second part भी है ना? There are two questions asked in the first question, please. Then Chirag, I'll be telling you to answer, okay? Sahili, why you were out? बाहर चले गए थे. नाश्ता करने गए थे. Sahili, what are you doing? Sahili, why did you go out? No sir, disconnect हुआ था network issue. हाँ, नाश्ता करने गए थे. मम्मा ने बुलाया, नाश्ता कर लिया. स्टूडेंट सॉल्व करो. Sahili, कब से प्रॉब्लम देके रखा है? चिराग ने एक आंसर निकाला. Gazafar, what about you? What are you doing? Solve fast and get me the answer. If one of you will give me the correct answer, I'll move further ahead. And I'm over here only, nowhere going. Sitting over here only, in front of yours. Come on, Gazafar, what are you doing? You're not answering. What about all these CS students? What are they doing? Sahili, answer fast. Divakar, क्या कर रहा है तू? Sorry, Prerna, very sorry. Prerna, tell me what are you doing? Prajapati. Kashish, what are you doing? Kush, what are you doing? Sanket, Sharad, Yash, Krishna, Soham. ये तो without mic वाले. Prerna, just now. Prerna, she is putting the answer. First time in her life she's answering.
First time in her life she's answered Prerna. Let me see what she has answered. Prerna, ये इसके लिए is it for the first question? Native has got the first answer, the first part correct. Prerna, your answer is incorrect, my dear. गलत जा रहे तुम. Ghazafar has got it wrong. Ghazafar, क्या कर रहा है तू? Why are you getting it wrong? So Prerna has posted the answer. Native has posted the answer, and Ghazafar, out of all the Native is bullseye. He is getting the answer on the spot. Correct. And first person who gave the answer was Chirag. Chirag, so much time for the other problem. To complete the Chirag so that I can explain. I'm waiting for you only because you are leading ahead in solving. There's nobody who can defeat Chirag or what? Himanshu, here comes Himanshu. Be entry my Himanshu का second answer is absolutely. Himanshu first answer क्या है तेरा? पहला आंसर तो तूने दिया ही नहीं हिमांशु. Second answer Himanshu is absolutely correct. Very good, very good. अच्छा, no idea. चिराग तूने second answer दिया ही नहीं है my dear. I'm looking into it. Wait a minute. Shyli, it's incorrect. तुम्हारा और गजफर का सेम आंसर आ रहा है, इनकरेक्ट है. No, no, Chirag. Well, I told you that's wrong, my dear. अच्छा तुमने नहीं डेसिमल में नहीं लिया, तुमने राउंड अप करके लिया है. 7.9 को 8 लिख दिया तुमने. Is it Chirag? Okay, fine. चलो accept किया. Accept किया. Come on fast. अभी तुम्हारा get this answer fast. इसका आंसर दे दो, we can proceed further. Fast. Time is running. Time is money. Ghazafar and David, please cross check it. Shaili has got it. Abdi. Now Shaili, she has got the answer correct. Very good. After several attempts. Shaili, you're correct now. Native, I don't know what she's doing. And there's no girl who can support Shaili and Native. यहाँ पे कोई देखो लड़कों का ग्रुप कितना स्ट्रांग होते जा रहा है. चिराग is there, Ghazafar is there, Himanshu is there. Prerna has come out with answer. Very good. अरे लेक्चर देख क्या स्टूडेंट्स अभी? Yes, कौन सा लेक्चर है? English इंग्लिश लेक्चर है. कहाँ के लेक्चर्स? college. किसी कॉलेज के लेक्चर्स है? Oh, so you all want to attend over there? Yes, sir. So, how many of you want to attend? Just raise your hands. I want to check out how many of you want to attend. Just raise your hand those who want to attend. Native, only one person. Achha, 2, 3. Oh wow, 3% want to attend. अच्छा, नुपुर को भी. नुपुर तो आंसर देती नहीं है, सब अटेंड ही कर रही है. साहिली, यानी सारे आंसर देने वाले जा रहे हैं. प्रेरणा, अरे बाप रे.
तो अगर ये आंसर देने वाले चले जाएंगे तो मैं सिखाऊं किसको, भजन करूं, कीर्तन करूं? हाँ, गजफर, व्हाट अबाउट यू गजफर, आर यू गोइंग? गजफर, आर यू गोइंग फॉर द लेक्चर्स? Yes, sir. ओके फाइन, तो ऐसा करता स्टूडेंट्स ये दोनों सॉल्व कर दो, बट काइंडली इन्फॉर्म अविनाश सर आल्सो इन फ्यू लेटर ऑन कि हम लोग लेक्चर्स में वहाँ पे हैं, बट स्टिल हार्डली 10 to 15 मिनट्स लेफ्ट, धीरे धीरे सब बाहर निकलेंगे ऐसे। ओके प्लीज, अभी देखो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टूडेंट, देन वी कैन वाइंड अप द मीटिंग। मैं कब से ये सॉल्व कर देता है यार। now ध्यान से सुना स्टूडेंट, इसको जो पहला वाला है सेपरेशन टू एक कैपेसिटेंस, तो पहला वाला इक्वेशन क्या होगा? अभी पहले ए से भरा हुआ तो व्हाट एग्जैक्टली, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a by d आएगा। यानी स्टूडेंट्स ये 8.85 into 10 raised to minus 12, एरिया कितना होगा? 4 into 10 raised to, ये किसके लिए जो स्टूडेंट्स नहीं मिला उनके लिए प्लीज, उनको से सॉल्व करके दे रहा हूँ, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस व्हाट 2 मिलीमीटर, तो ये होगा 2 into 10 raised to minus 3। एग्रीड स्टूडेंट्स? तो ये जिसने सॉल्व किया होगा उसको पहला आंसर स्टूडेंट्स यू शुड गेट इट एज 1.77 into 10 raised to minus 12 farad। अभी इसी का सेकंड पार्ट, अगर मैंने स्पेसिस फिल्टर पे डाइलेक्ट्रिक जिसका के है, तो अभी मेरा फॉर्मूला क्या होगा? सी फॉर अ मीडियम आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये के फॉर अ मीडियम एप्सिलॉन 0 a by d हो जाएगा स्टूडेंट्स। यानी अभी सिर्फ क्या करना है मुझे, ये जो आंसर मिला ना स्टूडेंट्स ये वाला, उसके साथ में क्या करना है, सिर्फ के को मल्टीप्लाई करना है, बस खत्म हो गया, वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यानी 6.7 into 1.77 into 10 raised to minus 12, तो इसका आंसर तुम्हें क्या मिलेगा? 7.90, जो शायद चिराग ने 8 लिख लिया था उसको, इंटू 10 raised to minus 12 सारे। क्या ये दो क्लियर हुआ सबको? You can Yes. put your hand down students, put your But hands sir, down। अब ये but लास्ट sir, वाला, यस 6.7 into 1.77 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 11.879 आ रहा है। एक मिनट, 11 पॉइंट, 11.879 आ रहा है। अरे हाँ यार, दिस टॉप ऑफ दिस इज फिल्ड आउट कंप्लीटली विद डायरेक्टली इन टू फॉर, ये आंसर 1.77 सबको मिल रहा है ना? यस सर, वो बराबर है। सही, who's this? Native, you are the one ना? यस सर। You're so good, you're so good। यानी स्टूडेंट्स ये गलत है इन दैट केस, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई, यानी तुम्हारा टेक्स्ट बुक के अंदर से मैंने आंसर लिया है, ये टेक्स्ट बुक आंसर गलत है। सी नेटिव इज एक्चुअली प्रूविंग टेक्स्ट बुक रॉन्ग। 7 7 49, 7 1 7 and 4 11, yes 11 आंसर 11 के आसपास जाएगा। क्या आ रहा है तुम्हें आंसर इसका? 11.879 into 10 raised to minus 12। तो चिराग, why did you say 8 naughty boy? हाँ, तो क्या आ रहा है? 11 पॉइंट, बोलो 11 पॉइंट इंटू 10 raised to minus 12। minus 12 यस सर। farad। Okay, please cross check, still cross check ना, इसको मैं लिखता हूँ cross check the calculation। Okay, last वाला students, very good Nadeem, you're so intelligent at times। अभी देखो यहाँ पे मैंने दिया है distance to dielectric slab with 1 millimeter, dielectric constant is 2, find the new capacitance। तो पहले केस में यानी capacitance क्या होगा? What exactly the formula will be? You'll say sir epsilon naught A upon, you're getting it, D, what is this we consider, ये total distance 2 millimeter है, उसमें से 1 millimeter slab ले लिया है, agreed? So can I say 1 millimeter means 10 raised to minus 3 meter upon K for a medium, K for a medium is 2, plus अगर 1 millimeter slab ने ले लिया तो बचा कितना? 1 millimeter बचा, तो वो हो जाएगा 10 raised to minus 3 upon L। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Agreed?
So now can I say ये तुम्हारा C for second case होगा. C पहला केस में कितना है? Epsilon naught A क्या epsilon naught A by D ये पहले केस में और ये D कितना है 2 into 10 raised to minus 3. यानी ये देखो उन्होंने कंपेयर करने के लिए बोला फाइंड द न्यू कंपैरिजन इफ आई कंसीडर. तो अगर तुम सॉल्व करोगे तो टेक अ रेशियो. देखो यहाँ पे तुम्हें मिल गया epsilon naught C तुम्हें मिल गया दैट इज इन दैट केस टेक द रेशियो गेट द आंसर. तुम इसका आंसर निकाल सकते हो और वो आंसर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. Is this clear students? You can get the value of C2. और ये आंसर तुम्हें कितना मिलेगा 26. C2 will get us 26.6 microfarad. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू ऑल? Yes, sir. Okay. Next lecture will be continuing further at students. Is that clear? Okay, sir. Yes, sir. Fine. Yes, sir. Please revise the formula. It's only now just 15 minutes left. Take up na handicraft or to derivation shortcut. Maybe 50 to another 20 minutes. But next time we'll start with new chapter also. Okay. Okay, Revise sir. the formula. I'll Okay, be sir. telling you the homework also. I might post the homework in the group also. Okay. Chalo, bye. Okay, sir. Bye. Most welcome. धन्यवाद. Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye. शुक्रिया सर.